Okay, so we have seen this. Whatever is the important part from jurisprudence, we will see only that. I'm not going to take chapter wise. Okay, so I will try to revise it quickly. So here are some important milestone of pharmacy profession. So first hospital was started in the 1664 Red Fort, St. John, Madras. Then first chemist shop was first chemist shop was opened by, मतलब यहाँ पे पहला chemist shop open किया था in 1811 in the Kolkata by Mr. बाथगेट। ये क्वेश्चन आया था जीपैट में। उसके बाद ड्रग इंक्वायरी कमेटी का सबसे पहले कब आई थी? 1930। आर एन चोपड़ा, इट इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। याद रखो, ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड 1941 में आया था। ठीक है, फर्स्ट कंस्टिट्यूटेड इन 1941। सीडीएल जो है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, उसका पहले एक नाम था, उसका पहले नाम था बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लेबोरेटरी, Biological Standardization Laboratory (BSL). So in 1937, the Biological Standardization Laboratory was established at Kolkata, and then it was renamed as a Central Drug Laboratory in 1940. Then PCI was constituted in 1949, First Pharmacy Council of India. Then first president of Pharmacy Council of India, that is a Dr. C.K. E. Raja. Okay, C.K. E. Raja. Then education regulation in 1953. First education regulation was passed. First B.Pharm College in Birla College in Pilani. Okay, 1954. Then D Pharmacy College first 1955. Government College of Government College, Government Medical College at Amritsar. Then AICT 1987. उसके बाद we have seen this editions of IP. Editions of IP कितने हैं? फर्स्ट एडिशन आया था आईपी का इंडियन फार्माकोपिया। इट इज अ स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिनल प्रिपरेशन। जितने भी आपके प्रोडक्ट्स है उसका सबका मोनोग्राफ आपका आईपी में मिल जाएगा। जैसे आपने इंडिया में आईपी है, फॉर इंडिया इट इज अ इंडियन फार्माकोपिया, फॉर ब्रिटिश इट इज अ ब्रिटिश फार्माकोपिया, फॉर अमेरिका इट इज अ यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, for European Union, it is a European pharmacopoeia. For Australia, it is different. For China, it is different. So every country has its own standards. Okay, its own standards to regulate the manufacturing, marketing, marketing of medicinal product. So that is a reference book. That is a pharmacopoeia. Okay, so first Indian pharmacopoeia was published in 1955. Second edition was published in 1966. Third 1985. Fourth 1996. Fifth 2007. Sixth 2010. Seventh 2014. And in 2018 also there was a 8th edition. याद रखो यहाँ पे 2018 पे edition आएगा 8. Now different acts and their penalty. First, Pharmacy Act 1948. Pharmacy Act 1948 was enacted on the 4th March 1948. याद रखो 4th March of 1948 the Pharmacy Act was enacted. Okay, now we'll see the details of this act in a upcoming not today's lecture, we'll see in another lecture. But today whatever is important, so penalties, we'll see the penalties. So Pharmacy Act 1948 was enacted in 1948. Okay, 4th March 1948. Now under this act you have different penalties. Okay, so first penalty is falsely claiming a registered pharmacist. अगर कोई falsely claim करता है कि registered pharmacist हूँ, तो he would be liable to punish. So he will be punished up to fine up to 500 rupees on first connection. अगर पहली बार उसने गलती की है तो उसका फाइन मिलेगा कितना? 500 रुपए। दूसरी कन्विक्शन, दूसरी बार भी गलती की उसने, दूसरी बार भी गलती की तो उसको 1000 रुपीज का फाइन लगेगा या फिर 6 मंथ की जेल भी हो सकती है। सो falsely claiming registered pharmacist, fine up to 500 on first connection. On subsequent connection, fine up to 1000 or 6-month imprisonment. Now dispensed by non-registered pharmacist. So if anybody is not registered his name in the
State Pharmacy Council or Pharmacy Council of India, and still he is engaged in the dispensing practices, then this that will be considered as a dispensing by non-registered pharmacist. So here medical practitioners are allowed somewhat relaxation, but dispensing of non-registered pharmacist will be liable to punish up to imprisonment of 6 months and fine up to 2000 or both. Then failure to surrender the registration certificate means if you have registered your name in the registration certificate, registration pharmacy council of state pharmacy council, या आपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल में आपके नाम का रजिस्ट्रेशन भी किया है, यू आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, बट यू आर एंगेज्ड इन द सम माल प्रैक्टिसेस. अगर आप कोई माल प्रैक्टिस में एंगेज हो रहे हो और आपको पकड़ा गया है, आप पकड़े गए हो, तो उसमें क्या होता है कि फार्मेसी काउंसिल अब स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज State Pharmacy Council can suspend your registration certificate, and State Council will call you to surrender the registration certificate. To surrender means you have to submit back the registration certificate, and if you are failure to surrender the registration certificate, then you are liable to be fined. ठीक है, आपने अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर नहीं किया तो उसका फाइन लगता है आपको. सो इट इज अ फाइन अप टू 50 रुपीज. Then obstruction of state pharmacy council inspector. So state pharmacy council inspector का obstruction कौन करते हैं? So mostly whatever the approved colleges are there, so state pharmacy council will will send inspectors to inspect the premises of college. Okay, so whether they are fulfilling all the necessary requirement as per the education regulation or not, they will check, or they will go and they will check. So any obstruction to those inspectors, any obstruction to the inspector sent by state pharmacy council to inspect the your premises, college or other, okay, college particularly. So it is also liable to punish. So imprisonment up to 6 months and fine up to 2000 or both. Okay. Now next, so Drug and Cosmetic Act. So Drug and Cosmetic Act was passed in 1940, and the Drug and Cosmetic Act 1940 and rules under 1945. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो पास हुआ था 1914 में, उसके रूल्स पास हुए थे 1945 में. तो इसका डिटेल आप बाद में देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें लेते हैं पहले. सो इसके अंडर जितने भी पेनल्टीज हैं वो अपन लेंगे. ओके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन व्यू टू control the standards, import, export, manufacturing, and sale of drug and cosmetic. Okay, so that's why the Drug and Cosmetic Act was enacted 1940. Remember, rules under 1945. So, a manufacturing or sale or distribution of adulterated, misbranded, then spurious or non-standard quality drugs. कि अगर कोई बंदा एंगेज है किसमें, okay. So if anybody is engaged in the manufacturing or selling or distributing the adulterated, misbranded or spurious or non-standard quality of drug, so which are likely to cause death or grievous hurt, is punishable with imprisonment up to not less than 5 years, and which may extend up to life imprisonment and fine not less than 10,000. मैं समझा देता हूँ आपको. अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत अगर कोई ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करता है, सेल करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है जो कि अडल्ट्रेटेड है, मिसब्रांडेड है, स्पूरियस है या फिर नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, तो वो बंदे को वो बंद ओके. सो ऐसे अगर कुछ करता है, मतलब if anybody is engaged in manufacturing, selling, distribution of adulterated or misbranded or spurious drug or non-standard drug, so these drugs can likely cause death or grievous hurt to the users or to the consumers. अगर ऐसे ड्रग्स बन रहा है जो आपके मिसब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड है, स्पूरियस है, कि उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो कंज्यूम करने के बाद जो पेशेंट्स या फिर जो भी यूजर है उसको
उसकी डेथ भी हो सकती है, या फिर ग्रीवियस हर्ट मतलब जान माल का नुकसान हो सकता है, उसका ज्यादा नुकसान हो सकता है उसकी बॉडी का। तो दैट एंगेजमेंट ऑफ सच एक्टिविटी इज लायबल टू पनिश अप टू इम्प्रिजमेंट ऑफ 5 years। अगर कोई ऐसा कर रहा है कि मिस ब्रांडेड ड्रग, या फिर बना रहा है, या फिर सेल कर रहा है, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, अडल्टेटेड और नॉन स्टैंडर्ड, देन इट इज लायबल टू पनिश अप टू 5 years। 5 साल की जेल होगी उसको। ओके, इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। 5 साल की जेल तो तय है। अगर उसका कन्विक्शन स्ट्रांग होगा तो उसको लाइफ टाइम भी इम्प्रिजमेंट मिलती है, मतलब पूरा पूरा उसका लाइफ उसको जेल में बिताना पड़ेगा। ठीक है, सो इम्प्रिजमेंट अप टू 5 years विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन नॉट लेस देन 10,000। ओके, 10,000 का फाइन भी भरना पड़ेगा। अभी इसमें क्या है, अभी इसमें ये क्या होता है, अडल्टेटेड मींस ब्रांडेड स्पूरियस, स्पूरियस ड्रग्स, इसका डेफिनेशन अलग से लेंगे अपन। ओके, सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द conviction, try to remember the penalties, conviction and penalties. Number 2, like above but not likely to cause death or grievous hurt, मतलब सेम above ये जो है मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अडल्टेटेड, मिसब्रांडेड, स्पूरियस और नॉन स्टैंडर्ड ड्रग, बट विच आर नॉट लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कि इनसे नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला है, मरने नहीं वाला कोई, या फिर उसका नुकसान ज्यादा नहीं होने वाला है बॉडी का, तो दैट इज ऑल्सो लायबल टू पनिश। ऐसा नहीं कि मतलब नुकसान ज्यादा नहीं हुआ तो वो छोड़ देंगे उसको, ऐसा नहीं, उसको भी पनिशमेंट होगा। सो manufacturing, selling, distribution, adulteration, distribution of adulterated, misbranded, spurious or non-standard quality drug, which are not likely to cause death or grievous hurt, which is also punishable with the imprisonment up to 1 year, not less than 1 year। एक साल से कम नहीं, एक साल का जेल तो कम से कम होना है, और which may extend up to 3 years and fine not less than 5,000 on first conviction, and on subsequent conviction imprisonment up to 2 years, imprisonment up to 2 years and which may extend up to 6 years and fine not less than 10,000। मतलब क्या, कोई बंदा अगर अडल्टेटेड ड्रग जो है उसको, अडल्टेटेड ड्रग जो है, मिसब्रांडेड ड्रग जो है, स्पूरियस ड्रग जो है वो बना रहा है या फिर सेल कर रहा है या फिर उसको स्टॉक कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग द स्टॉक, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टॉक, सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट इज लायबल टू पनिश विच। अभी ये जो अडल्टेटेड, मिसब्रांडेड, स्पूरियस ड्रग्स है, ये दो काम करते हैं। एक तो मतलब ये इसको कंज्यूम करने की वजह बाद में किसी की डेथ भी हो सकती है, या फिर उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो उस टाइम में पनिशमेंट अलग है। और वही ड्रग अगर डेथ नहीं करते और नुकसान भी कम करते तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है। ओके, सो manufacturing, selling, distribution of these drugs, these adulterated, misbranded or spurious drugs, which are likely to cause death or grievous hurt, then it is punishable of punishable the it is punishable with the imprisonment. Imprisonment means jail up to not less than 5 years, which may extend up to life imprisonment। अगर कोई मरता है इसके यूज से, या फिर मरने के क्या बोलते हैं उसको, ग्रीवियस हर्ट करता है, तो दैट इज पनिशेबल अप टू imprisonment of not less than 5 years and it may extend up to life imprisonment and fine not less than 10,000। अभी वही प्रोडक्ट अगर डेथ नहीं करते, दे आर नॉट लाइकली टू कॉज द डेथ और ग्रीवियस हार्ट, मतलब ये नुकसान तो करेंगे लेकिन इतना भी नहीं करेंगे कि मर जाए या फिर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, फिर भी लेकिन वो भी पनिशेबल है। सो अबव लाइक बट नॉट लाइकली टू कॉज द डेथ और ग्रीवियस हर्ट is also punishable with the imprisonment up to 1 year, not less than 1 year, and which may extend up to 3 years। एक तो 1 साल की सजा तो फिक्स है, और उसका बढ़ भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है, कि उसका प्रूफ कितना स्ट्रांग हो। एंड फाइन नॉट लेस देन 5,000 ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। अगर पहली बार पकड़ा गया है तो 1 साल का जेल होगा, डिपेंडिंग अपॉन कन्विक्शन कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर 1 साल से लेकर 3 साल तक जेल भी हो सकता है, और 5,000 फाइन लगेगा। ठीक है, ऑन फर्स्ट कंडीशन, पहली बार अगर किया तो। अगर दूसरी बार भी वैसे ही करता है, सुधरना ही, वो आदत होती है किसी लोगों की कि पहली बार नहीं सुधरते हो, दूसरी बार भी वही करते काम, तो ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन इम्प्रिजमेंट अप टू नॉट लेस देन 2 years एंड विच में एक्सटेंड अप टू 6 years। दूसरी बार अगर पकड़ा गया ऐसा करते हुए तो 2 साल का जेल है, वो 2 साल का जेल बढ़ भी सकता है 6 साल तक, और उसको फाइन में लगेगा 10,000। ओके, सो इट इज ओके। मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन
adulteration of manufacturing, selling, distribution of adulterated, misbranded and spurious drugs. ये याद रखो. Now next, penalty for non-disclosure of the name of manufacturer. ठीक है, पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर. ठीक है, मतलब क्या, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और मार्केट कर दिया, लेकिन वहां पे आपका मैन्युफैक्चरिंग का आपका जो यूनिट है उसका नाम ही नहीं लिखा. सो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर विच इज लायबल टू पनिश. सो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year और फाइन अप टू 10,000 और बोथ. इसमें क्या होगा, अगर आपने प्रोडक्ट बनाया लेकिन आपका नाम ही नहीं उस पे, वो खा के कोई मर गया, तो क्या किसको करेंगे, किसको पकड़ेंगे वो? हुँ? तो आपने आपका नाम डिस्क्लोज नहीं किया वहाँ पे, आपने अपना नाम लिखा नहीं वहाँ पे. सो यू आर नॉट फॉलोड द गाइडलाइंस. सो पेनल्टी फॉर सच नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year और फाइन अप टू 10,000 और बोथ. मतलब मान लीजिए कि आपका शॉप है, दुकान मेडिकल शॉप है, और वहाँ पे कुछ चीज़ खा के किसी को बीमार हो गया, उसने जाके कंप्लेंट कर दी. अगर आपने ये किसने बनाया था, मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका नाम नहीं बोला, तो आपको भी सजा होती. ठीक है. देन नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर नॉट कीपिंग द डॉक्यूमेंट, फॉर नॉट कीपिंग डॉक्यूमेंट और नॉट डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन. पेनल्टी फॉर नॉट कीपिंग डॉक्यूमेंट्स और नॉट डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन. वही इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year एंड फाइन अप टू 1,000 और बोथ. कि आपने अगर कुछ इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया और डॉक्यूमेंट नहीं रखा, किसको सेल किया था क्या, तो उसके लिए भी आपको सजा मिल सकती है 1 साल की जेल और 10,000 का फाइन. नाउ पेनल्टी फॉर एडवर्टाइजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट अनलिस्ट. तो मान लीजिए कि मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कि मैं एक मान लीजिए कि मैं झंडू बाम का तरह का कुछ बाम बनाता हूँ. ठीक है, इट्स ऑल्सो मेडिसिनल प्रोडक्ट. मान लीजिए मैं ऑइंटमेंट बनाता हूँ, ये डाइक्लोफेनाक का. तो उसका क्या होता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट सैंपल जो होता है गवर्नमेंट लेबोरेटरी, वो टेस्टिंग भी करना पड़ता है जब पहली बार बनाता हो तो टेस्टिंग करने के बाद उसका जो रिपोर्ट आता है, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का रिपोर्ट आता है. अगर वो रिपोर्ट अच्छा है, मेरे फेवर में है, और मैंने उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया, देखो मेरा कंपनी का ब्रांड इतना अच्छा है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट का भी रिपोर्ट अच्छा है, अगर ऐसा किया एडवर्टाइजमेंट, सो that is also punishable. So penalty for advertising the report of government analyst, so that is also punishable, and fine up to 500 on first conviction, and on subsequent conviction imprisonment up to 10 years or fine or both. ये देखो, penalty for advertising the report of government analyst, penalty है fine up to 500 on first conviction, and on subsequent conviction imprisonment up to 10 years or fine. बार बार वही गलती कर रहे हैं आप, तो लंबी लग जाएगी. नेक्स्ट वन इज द पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक. ठीक है, अगर आप इफ यू आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक, एंड इफ यू कॉन्ट्रावेंशंस, मतलब आपने कोई भी एक्ट का रूल जो है, एक्ट का जो प्रोविजंस है, वो कोई भी एक्ट के अगेंस्ट गए आप, मतलब तोड़ दिया आपने वो एक्ट, तो that is also liable to punish. So penalty for contravention of any provisions of the act for manufacturing and distribution of cosmetic, so it is liable to punish. So imprisonment up to 3 years, or imprisonment up to 3 years for manufacturer, imprisonment up to 1 year for distributor. मतलब imprisonment up to 3 year is for manufacturer and imprisonment to up to 1 year for distributor. मतलब कोई भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो रूल्स है उसको ब्रेक करके अगर कुछ किया, तो उसको लाइबल टू पनिश. वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको 3 साल की सजा है, और जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको 1 साल की सजा है. मतलब आपने अगर दुकान से बेचा है कुछ, और उसकी वजह से मतलब वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं है, उसका कॉन्ट्रावेंशन हो गया, एक्ट का रूल टूट गया, तो आपको भी सजा है और मैन्युफैक्चरर को भी सजा है. ठीक है. देन नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट. मतलब अगर आप इफ यू आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग, सिद्धा ड्रग और यूनानी ड्रग, and you are not manufacturing according to the drug and cosmetic act or rules given under the act, so it is a contravention. So you are contravening the act, you are liable to punish. Okay, so you are liable to punish under the section 33 of EEC.
इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू नॉट लेस देन 2000, कि आपको 1 साल की जेल हो सकती है और फाइन भी लग सकता है 2000 से कम नहीं, ठीक है। देन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेक्शन ऑफ 33 EEA, इम्प्रिजमेंट अप टू इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 ईयर्स एंड फाइन नॉट लेस देन 5000। यहाँ पे कुछ बोल्ड में करना था मुझे, किया नहीं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, ओके। अभी इसके बारे में बहुत चर्चा में है ये, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट सब्सटेंसेस, ओके। सो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, NDPS। अभी शाहरुख खान का जो है लाडला, वो गया था अंदर जेल में, इसी के एक्ट के अंदर गया था वो, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जो भी नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, जैसे आपका बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे ओपियम हो गया आपका, गांजा हो गया, ठीक है, ओपियम, अफीम, गांजा, देन all the sedative hypnotic drugs, so barbiturates, LSD, lysergic acid derivative, ketamine, etc., etc. So all these drugs comes under the Narcotic Drug and Psychotropic Act substances. So any contravention of this act is liable to punish with a rigorous imprisonment. ठीक है, rigorous मतलब कड़ी की, कड़ी से कड़ी सजा बोलते हैं ना, इसमें कोर्ट में, माय लॉर्ड इसको कड़ी सी कड़ी सजा दो, कड़ी सी सजा मतलब, कड़ी सी कड़ी सजा मतलब क्या, rigorous imprisonment. Okay, so this Narcotic Drug and Psychotropic Act was passed in the 1985 and rules under 1985, ये याद रखो आप, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सो ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, कब पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद ना ऑफेंसेस, उसके अंडर ये पूरा एक्ट बाद में देखेंगे, अब हम पूरा एक्ट अपन बाद में देखेंगे, पहले इसके अंडर कौन से पेनल्टीज है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा अलग तरीके से जा रहे हैं लेकिन ओके। So offenses. So contravention in relation to poppy straw, opium poppy, or opium or prepared opium, coca plant and leaves, manufacture a drug and preparation substances, cannabis and ganja. So any contravention related to these, contravention मतलब क्या, अगर वो एक्ट के तहत आपने किसी भी रूल को तोड़ दिया, किसके एक्ट के तहत में, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट के तहत में, किनके रिलेशन में, इनके रिलेशन में, पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी, ओपियम, प्रिपेयर्ड ओपियम, कोका प्लांट लीव्स, इट्स लीव्स, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, देन प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग एंड प्रिपरेशन इन सब्सटेंसेस, कैनाबीज, गांजा, इसके रिलेशन में कोई भी आपने इसका एक्ट का रूल तोड़ दिया तो दैट इज लायबल टू पनिश, ओके। Then import, export, transshipment of same, external dealing of drug and allowing the premises for committing the offense. मतलब जितने भी नार्कोटिक ड्रग्स के अंदर ड्रग आते हैं, ओपीएम पॉपी, रॉ ओपीएम, इसका डेफिनेशन अपन देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय रॉ ओपीएम, व्हाट इज पॉपी, ओपीएम पॉपी, व्हाट इज प्रिपेयर्ड ड्रग, व्हाट इज मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, इसका डेफिनेशन आता है इसके अंदर, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। हर एक एक्ट में डेफिनेशंस भी आते हैं, वो भी देखेंगे। सो एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस रिलेटेड टू these opium poppy, straw opium or prepared drug or your ganja or you cannabis, hemp, etc., manufactured drug, import, export, transshipment, किसी ने इलीगली इंपोर्ट किया है उसको, कोई इलीगली एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है, ट्रांसशिपमेंट। देन एक्सटर्नल डीलिंग जो डील करता है ड्रग्स में उसका, अलाउिंग द प्रीमाइसेस फॉर कमिशनिंग द ऑफेंस, मतलब अगर आपका प्रीमाइसेस, आपका जगह उसको दे दिया एक दिन के लिए, मतलब अलाउ किया आपने, आपको मालूम भी नहीं है कि इसमें ड्रग्स है, फिर भी आपने अलाउ किया, आपका दोस्त है बोल के, बट अगर एनडीपीएस के ऑफिसर ने पकड़ लिया तो आपको भी जेल हो सकती है, ओके। मीन्स import, export, transshipment of the same, external dealing of the drug and allowing the premises for commission of offenses. ऑफेंस मतलब गुना जो है, कन्विक्शन हो रहा है, किस जगह पे हुआ, आपकी जगह पे हुआ, आपको मालूम भी नहीं उसमें क्या था, लेकिन आपकी जगह पे हुआ है तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, ओके। सो एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, नाउ पेनल्टी, रिगरस इम्प्रिजमेंट, कड़ी से कड़ी सजा अप टू 10 to 20 years, rigorous imprisonment up to 10 to 20 years and fine up to 1 to 2 lakh, okay, on first conviction, and on second conviction or subsequent conviction, imprisonment up to 15 to 30 years and fine up to 1 to 1.5 to 3 lakhs। देखो, इसका आपने कंज्यूम किया या फिर किसी भी
किसी भी इनमें से किसी भी एक्ट में आप इन्वॉल्व हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट, या फिर एक्सटर्नल डीलिंग विद द ड्रग, और allowing the premises for commencement of your offense। गुनाह होता है, तो गुनाह जहाँ पे हुआ है वो उसको अलाउ किया आपने अपनी जगह, तो आप भी उसमें कन्विक्ट हो जाओगे। ओके, सो रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 10 to 20 years और फाइन अप टू 1 to 2 लाख। आपको 10-20 साल की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, और फाइन भी लग सकता है 1 से लेके 2 लाख तक। ठीक है, ऑन फर्स्ट कनेक्शन। पहली बार पकड़े गए तो इतना मिलेगा, क्या, 10 से 20 साल सजा, उसके बाद 1 से 2 लाख रुपए फाइन। अगर बाद में फिर से भी पकड़े जाते हो आप अगेन अपन सबसिक्वेंट कन्विक्शन, सो आपको मिलेगी सजा 15 से 30 साल तक, और आपका फाइन भी बढ़ जाएगा 1.5 to 3 lakhs। दिस वाज क्वेश्चन इन जीपैट 2019। ये क्वेश्चन जीपैट में भी आया था। ये भी पूछते हैं कि एक्ट का कब पास हुआ। ठीक है, उसके बाद में उसके डेफिनेशंस पे अपन देखेंगे। ठीक है, नाउ सेकंड ऑफेंस। सो ऑफेंस, पहला ऑफेंस क्या था, पहला गुनाह क्या था, अगर इसमें पकड़े गए आप, किसमें, कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू पॉपी स्ट्रॉ, ओपियम पॉपी, ओपियम, प्रिपेयर्ड ओपियम, कोका प्लांट लीव्स, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, देन प्रिपरेशन सब्सटेंसेस, कैनबिस लाइक सब्सटेंस लाइक कैनबिस, गांजा, जो भी ड्रग्स है, एलएसडी, उसके बाद एलएसडी, केटामाइन, एमडीके, बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप पकड़े गए इसमें, तो ये होगा। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसशिपमेंट सेम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसशिपमेंट ऑफ सेम, मतलब ये ड्रग का इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया, ट्रांसशिपमेंट किया, एक्सटर्नल डीलिंग ऑफ ड्रग्स, देन अलाउिंग द प्रीमाइसेस टू कमेंस द ऑफेंस, मतलब आपका जगह दे दिया उसको, आपको मालूम ही नहीं, मतलब वहां पे अगर गुना हो रहा है, गुनाह हो रहा है आपकी जगह पे, दैट इज अलाउिंग द प्रीमाइसेस फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस, so that is liable to punish up to rigorous imprisonment up to 10 to 20 years and fine up to 1 to 2 lakhs on first conviction, and on subsequent conviction imprisonment up to 15 to 30 years and fine up to 1.5 to 3 lakhs। ठीक है, पहले 10 से या 20 साल की सजा हो सकती है आपको, और उसके बाद में फाइन भी लग सकता है, एंड अगर दोबारा किया वैसा तो डबल हो गई सजा आपको, इम्प्रिजमेंट मतलब सजा हो गई आपको 15 से लेकर 30 साल तक, फाइन मिलेगा आपको, फाइन भरना पड़ेगा आपको 1.5 to 3 lakhs। नाउ ये हो गए फर्स्ट ऑफेंस। सेकंड ऑफेंस, इफ एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंसेस द प्रोविजन ऑफ एक्ट, मतलब ये इसके जो प्रोविजन है, जो नार्कोटिक ड्रग एंड सेक्टर पैक की, उसके कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, मतलब उसको तोड़ते हैं ये प्रोविजन को, तो एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंसेस द एक्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट टू गांजा फॉर कल्टीवेशन, गांजा और कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट, कोई भी आदमी अगर इसके इसके जो रूल्स है वो तोड़ता है इन रिस्पेक्ट टू गांजा और कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस प्लांट का कल्टीवेशन और गांजा का कल्टीवेशन, इसके रूल्स अगर कोई तोड़ता है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे गांजा पकड़ा गया, रिसेंटली न्यूज आई थी, ट्रक लेके जा रहा था गांजा पकड़, मतलब सब वही है। तो फॉर दैट rigorous imprisonment up to 5 years and fine up to 1 point कितना हो गया 15,000। ओके, rigorous imprisonment up to 5 years and fine up to 15,000 on first conviction, and on subsequent conviction imprisonment up to 3 years and fine up to 1 lakh। ठीक है, मतलब अगर आपने एनी कॉन्ट्रावेंशन किया, कुछ भी रूल तोड़ा रिगार्डिंग गांजा, कल्टीवेशन ऑफ गांजा एंड कैनबिस प्लांट, इसके रिगार्डिंग कोई भी रूल तोड़ा तो आपको रिगरस इम्प्रिजमेंट हो सकती है 5 साल की जेल हो सकती है, एंड फाइन भी लग सकता है आपको 15,000 का। ठीक है, पहली बार अगर पकड़े गए तो, अगर बार बार सुधर नहीं रहे आप, बाद में भी पकड़े गए, फिर से दोबारा भी गलती की आपने, दोबारा भी कन्विक्शन हो गया आपका, तो आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है 3 साल की एंड फाइन अप टू 1 लाख। ठीक है, नाउ इलीगल कंजम्पशन पोजेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन अप टू फाइन और बोथ, मतलब आपने इलीगल कंजम्पशन किया, ठीक है, जैसे अपना इसका किया या नहीं किया वो अपने वो अलग बात है, लेकिन जिसको पकड़ा गया था उसमें जो था आर्यन खान, तो इलीगल कंजम्पशन और पोजेशन मतलब आपने रख लिया अपने पास, दैट इज नोन एज पोजेशन। अगर आपने खा लिया दैट इज कंजम्पशन, अगर आपने रख लिया
और आपने बोल दिया सर मेरा नहीं, ये तो मेरे दोस्त ने दिया था, उनको कुछ लेना देना नहीं है, आपको पकड़ेंगे, आपके पास मिल रहा है ना तो आपको पकड़ेंगे, ठीक है। इलीगल कंजम्पशन, पोजेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, सो दैट इज आल्सो पनिशेबल, सो रिगरस इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन और बोथ। अगर इसमें पकड़े गए आप तो 1 साल की जेल होगी, फाइन भी लगेगा या फिर दोनों भी लगेंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो, हेलो, ओके। नाउ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, एमटीपी, ये जो दो एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये दोनों का बहुत मतलब एक बार अंदर गए ना इसमें तो फिर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, medical termination of pregnancy act was established in 1971 or not, it was enacted in 1971. So मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जो प्रेगनेंसी अन, ऐसा नहीं कि कोई भी आके प्रेगनेंसी हो गया तो उसका अबॉर्शन करवा सकता है, ऐसा नहीं। इलीगल अबॉर्शन के चक्कर में बहुत सारे डॉक्टर अंदर हैं अभी, बहुत सारे डॉक्टर है जो जेल की सजा काट रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब अबॉर्शन, ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इट वाज इनएक्टेड फॉर द रीजन टू कंट्रोल द इलीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज, ओके। सो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अभी देखते हैं इसका इसके अंडर कौन से पेनल्टी है। So any person who is not registered medicinal practitioner, any person who is not RMP and engaged in the termination of pregnancy should be punishable with imprisonment or fine or both। इसको अगर कोई कोई बंदा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, मतलब डॉक्टर नहीं है, ठीक है, जो डॉक्टर नहीं है और वो क्या कर रहा है, आपका एबॉर्शन कर रहा है, ही इज एंगेज्ड इन द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, देन इट इज पनिशेबल एंड इट मे बी पनिशेबल अप टू, उसको पनिशमेंट होगा इम्प्रिजमेंट, उसको जेल भी हो सकती है, उसको फाइन भी लग सकता है या फिर दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। अभी कितना फाइन लगेगा कितना जेल होगी ये यहाँ पे बोला नहीं है, ना बुक में बोला है ना किसी ने, तो सिर्फ इतना ही लिखा है, तो इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। देन एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस विल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट और फाइन अप टू 1,000 रुपीज और बोथ, ठीक है। तो इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वट एवर द प्रोविजंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 are there, if anyone breaks that provisions or anyone contravention that provision, then that is liable to punish. So punishment is imprisonment and fine up to 1,000 रुपीज, उसको जेल भी हो सकती है और फाइन भी मिल सकता है और या फिर दोनों भी हो सकते हैं। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, जो भी आपके सोप्स होते हैं, जो भी आपके हैंड वॉश होते हैं, टॉयलेट प्रिपरेशंस, मेडिसिन, वो उसका डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, डोंट वरी। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1955, रिमेंबर, and rules was passed in 1956, okay. Any contravention of the provisions like failure to pay excise duty, supply information, commit attempt to commit or any one of the above offense shall be punishable to imprisonment up to 6 months or fine up to 2,000 और both। मतलब यहाँ पे इसके जो रूल्स है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, इसके अंदर के जो रूल्स है, एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन लाइक एग्जांपल failure failure to pay excise duty, ठीक है। इफ यू आर एंगेज इन द मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एंड इफ यू आर नॉट सबमिटेड योर ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या, टैक्स। जो मेडिसिनल प्रिपरेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि अल्कोहल यूज करते हैं या फिर दूसरे अल्कोहल या फिर नार्कोटिक सब्सटेंस यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको ड्यूटी पे करना पड़ता है, उसका टैक्स पे करना पड़ता है, अगर वो नहीं पे किया तो आपको पनिशमेंट होगा। सो एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन लाइक फेल्यूर टू पे ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सप्लाई द इंफॉर्मेशन, अटेम्प्ट टू कमिट एनी वन ऑफ द अबव ऑफेंसेस, मतलब अटेम्प्ट टू कमिट मतलब आपने गुनाह किया नहीं लेकिन करने वाले हैं, ऐसा दिख भी गया उनको कि आप गुनाह करने जा रहे हो, किया नहीं अभी तक, जा भी रहे हो, फिर भी आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। मतलब आप मर्डर करने जा रहे हो लेकिन जब तक मर्डर नहीं करते तो पुलिस आपको पकड़ेगी नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है,
इसमें ये हो रहे हैं, मतलब attempt to commit of any one of the above offense shall be punishable up to imprisonment up to 6 months, 6 महीने की जेल हो सकती है, आपको फाइन भरना पड़ेगा 2,000 रुपये, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेयर हाउस। ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेयर हाउस, ऑफेंस मीन्स गुनाह, ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेयर हाउस, फाइन अप टू 2,000, मेंटेनिंग अ फॉल्स रिकॉर्ड अकाउंट इन वेयर हाउस, अगेन फाइन अप टू 2,000। मतलब जहाँ पे अगर आपका बॉन्डेड लेबोरेटरी है या फिर नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी है, उसमें अगर आपने उसमें अगर आपने फॉल्स अकाउंट रख दिया है या फिर अकाउंट का रिकॉर्ड नहीं रखा, आपको फाइन लगेगा 2,000 रुपये। Next, sale of dutiable goods except in a prescribed container, keeping the stock of dutiable goods in a disorderly manner, then fine up to 1,000 रुपीज। मतलब अगर आपने कोई हैंड सैनिटाइजर बनाया, फॉर एग्जांपल सैनिटाइजर, अभी कोरोना का पीरियड है तो सैनिटाइजर का एग्जांपल लेते हैं। तो अभी कैसा है, कोई भी आके सैनिटाइजर बना रहा है क्योंकि पैसा मिल रहा है ना, बेच मतलब बिक रहा है वो, तो सैनिटाइजर बना रहे हैं, सैनिटाइजर बना रहा है, लेकिन वो अगर अकॉर्डिंग टू रूल नहीं बनाया तो उसमें आपका पकड़े जाएंगे। ठीक है, सो सेल्स ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स, सैनिटाइजर में क्या होता है, अल्कोहल बेस से, अल्कोहल क्या है, ड्यूटीएबल गुड है, ड्यूटीएबल गुड, तो उसका ड्यूटी आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो सेल ऑफ ड्यूटीएबल गुड एक्सेप्ट इन अ प्रेस्क्राइब्ड कंटेनर, जो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये अगर ये है, इसमें अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, तो उसका कंटेनर ऐसा होना चाहिए, उसका लेवल ऐसा होना चाहिए, ये सब। सो वट एवर नॉर्म्स लेड बाय गवर्नमेंट, so if you are not following that norms then you are punishable. So that is sale of dutiable good except in a prescribed format, keeping the stock of dutiable good in disorderly manner। मतलब आपने प्रिंटिंग वगैरह लेबलिंग वगैरह अच्छे से किया है, लेकिन आपने क्या किया कि स्टॉक जो है वो ऑर्डरली नहीं रखा, मतलब ऑर्डरली मैनर नहीं रखा। मतलब क्या कि बैच नंबर है आपका, बैच नंबर है 0001153 और दूसरा बैच नंबर है 0001599, तो 9 आपने पहले लिख रखा और 3 बाद में रखा, मतलब डिसऑर्डरली। ओके, मतलब डिसऑर्डरली भी रखा आपने, सो दैट इज आल्सो पनिशेबल। सो कीपिंग द स्टॉक ऑफ ड्यूटीएबल गुड इन अ डिसऑर्डरली मैनर, सो फाइन अप टू 1,000। देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर व्हाइल कैरिंग आउट देयर ड्यूटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं, एक्साइज कमिश्नर होता है, सो एक हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक्साइज कमिश्नर होता है, उसके अंडर एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, सो दोज आर यूज्ड टू कंट्रोल द ड्यूटीएबल गुड्स। तो आपके वेयर हाउस पे इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे कि आपने अल्कोहल कहाँ पे रखा है, कितना क्वांटिटी है, उसका रिकॉर्ड कितना है, सब कुछ देखते हो। और उनको अगर आपने उनको ऑब्स्ट्रक्शन किया, ऑब्स्ट्रक्ट किया उसको उनकी ड्यूटी करने से, मतलब उनकी ड्यूटी करने से अगर आपने रोका उनको, तो अभी आप फाइन लगा देंगे वो। सो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑफिसर व्हाइल कैरिंग देयर ड्यूटीज, फाइन अप टू 600। The next is Drug and Magic Remedies Act. Drug and Magic Remedies Act 1954, रूल्स 1955। तो रूल्स का छोड़ो, इतना याद रखो, 1954 ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। सो दिस एक्ट वाज enacted, this act was enacted to prevent the false and misleading claims and advertisement. So we'll see it again, don't worry. So just here we'll see the punishments. So Objectionable Advertisement Act, it is also known as Objectionable Advertisement Act. So any person who contravenes any provision of the act is liable to punishment on first conviction, imprisonment of 6 months or fine or both. On second conviction, imprisonment of 1 year और फाइन और बोथ। मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर जो रूल्स है, जो प्रोविजंस है, उसको ब्रेक करेंगे आप तो पनिशमेंट मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि आपने बोला है भाई कैंसर है, कैंसर को क्योर नहीं है, ठीक है, बट आपने बोला कि नहीं मेरे पास ऐसी एक जड़ी बूटी है और वो कैंसर को क्योर करती है, और आपने एडवर्टाइजमेंट डाल दिया टीवी पे को कि मैं हमारे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है हमने कि वो कैंसर को क्लियर कर देगा, तो दैट इज अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, दैट इज अ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट। सो यू आर लायबल टू पनिश। तो आपको अगर आपने पहली बार गुनाह किया है, सो यू विल हैव इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने की जेल होगी आपको, फाइन भी लगेगा या फिर दोनों भी लगेंगे। ठीक है, अगर फिर भी आप नहीं सुधरे, दोबारा ऐसा किया
तो ऑन सेकंड कन्विक्शन इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन और बोथ, कि दोबारा ऐसा किया तो 1 साल की सजा, या फिर 1 साल की सजा, फाइन भी लगेगा, या फिर दोनों भी लगेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज अ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ 1995. Any contraventions of the provision of this act is liable to punish in the accordance with the provision of Essential Commodity Act 1955. ठीक है, इसमें क्या है, ड्रग प्राइस कंट्रोल इज ड्रग प्राइस कंट्रोल इज ड्रग द, ये इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, बोलता हूँ आपको। So drug price control, any contravention of provision of drug DPCO is punishable under the Essential Commodity Act 1955. ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है वो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो होता है उसके अंडर ही उसका कन्विक्शन होता है, ठीक है। सो लायबल टू पनिश इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ Essential Commodity Act 1955. Then next one is the Prevention of Food Adulteration Act. So 1954. So any offences, all offences to be punished, with imprisonment of 6 months, which may extend up to 3 years, and fine up to 1000. अगर फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत आपको अगर किसी में भी चीज में पकड़ा गया तो आपको क्या होगा, 6 महीने की जेल होगी, ठीक है। 6 महीने की जेल 3 साल तक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइन भी लगेगा आपको 1000 रुपीज का, ठीक है। सो नेक्स्ट, okay, next one is Indian Patent Act 1970. Indian Patent Act 1970. So any contraventions of the secrecy of invention, falsification of entries in the register. Okay, first one is a contravention of secrecy of invention. मान लीजिए कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट की तरह हो, आपने कुछ इन्वेंट किया है, कि मान लीजिए आपने कोई नया एपरेटस इन्वेंट किया है और आपने उसका पेटेंट ले लिया, और दूसरे किसी ने यूज किया उसको, तो उसका मतलब कॉन्ट्रावेंशन हो गया, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ इन्वेंशन, falsification of entries in the register. So it is liable to punish imprisonment up to 2 years और फाइन और बोथ। मतलब आपका कोई पेटेंट है, उसको किसी ने यूज किया तो उसको सजा होगी, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ इन्वेंशन। मतलब आपने कुछ इन्वेंट किया है, ठीक है, आपने पेटेंट के लिए अप्लाई भी किया है, लेकिन मैं तो आपका दोस्त हूँ, मैं आपके साथ में काम करने के लिए आता था, तो मैंने देखा है अरे ये ऐसा ऐसा कर रहा, मैंने चुरा लिया वो, ओके, या फिर मैंने डिस्क्लोज किया, सीक्रेसी उसका अफेक्ट किया, तो दैट इज आल्सो इम्प्रिजन, दैट इज आल्सो लायबल टू पनिश। समझ रहा है आपको, इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years। आर यू गेटिंग और नॉट? हेलो, या देन सेकंड, अनऑथराइज्ड क्लेम ऑफ पेटेंट, मतलब पेटेंट किसी और का है और आप क्लेम कर रहे हो। मतलब पेटेंट, मान लीजिए कि जतिन ने क्या किया, एक इन्वेंशन किया, उसका पेटेंट ले लिया, और मैं ये कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ कि नहीं ये पेटेंट मेरा है। अगर उसने पेटेंट लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो अनऑथराइज्ड क्लेम ऑफ पेटेंट, अगर मैंने अनऑथराइज्ड क्लेम किया तो मुझे फाइन लगेगा, फाइन अप टू 1 लाख, ठीक है। देन रॉन्गफुल यूज ऑफ वर्ड पेटेंट ऑफिस, wrongful use of word patent office, imprisonment up to 6 month और फाइन और बोथ। अगर आपने कुछ गलत तरीके से इस वर्ड का यूज किया, पेटेंट ऑफिस, गलत तरीके से आपने इसका यूज किया, ये शब्द का पेटेंट ऑफिस, तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। सो रॉन्गफुल यूज ऑफ वर्ड पेटेंट ऑफिस, सो इम्प्रिजमेंट अप टू 6 month और फाइन और बोथ। देन नेक्स्ट वन इज अ प्रैक्टिस बाय अनरजिस्टर्ड एजेंट, होते हैं ना पेटेंटिंग एजेंट जो होते हैं, पेटेंटिंग एजेंट, पेटेंट करवा के देने वाले एजेंट्स होते हैं, पेटेंटिंग एजेंट जिसको बोलते हो, पेटेंट एजेंट जिसको बोलते हो। सो द पेटेंट एजेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द पेटेंट एक्ट 1970, उसके अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, वही आदमी पेटेंट एजेंट कहलाता है। सो इफ he does not have a registered patenting agent, so
he is liable to punish. Practice by unregistered agent, it is liable to punishment up to 1 lakh, fine up to 1 lakh on first conviction and fine of 5 lakhs on second conviction. मगर मतलब क्या कि आप बोल रहे हो कि मैं पेटेंट एजेंट हूँ और मैं आपको पेटेंट करवा के दे सकता हूँ और आपने पेटेंट एजेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके पास, तो फिर आपको फाइन हो सकता है 1 लाख का अगर पहली बार गलती की तो। दूसरी बार भी गलती की इस तरह नहीं तो फिर 5 लाख का फाइन है। नेक्स्ट वन इज पॉइजन एक्ट, पॉइजन एक्ट 1919। So illegal possession, then sale, import of poison is punishable with the imprisonment up to 3 months or fine up to 500 or both on first conviction. On second conviction, imprisonment up to 6 months or fine up to this 1000 rupees or both. अगर poison act है 1919 to control the illegal possession, import, export, then use of poisons. This act was enacted. ओके, पॉइजन एक्ट 1990। तो इसमें कैसा इलीगल पोजीशन, पोजीशन में ये पोजीशन है इलीगल पोजीशन, मतलब आपने आपने अपने पास पॉइजन रखा तो उसका भी फाइन है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉइजन परचेज करना, पॉइजन लेके जाना भी ऑफेंस है, गुनाह है। सो इलीगल पोजीशन, सेल, इंपोर्ट ऑफ द पॉइजन, आपने अपने पास रखा है पॉइजन इलीगल तरीके से, सेल कर रहे हो उसको इलीगल तरीके से, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हो उसको, फिर भी फाइन लगेगा। ठीक है, सो इज पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट अप टू 3 मंथ, 3 महीने जेल हो सकती है, 500 रुपये फाइन लग सकता है या फिर दोनों भी लग सकते हैं। पहली बार अगर गलती की तो, दूसरी बार गलती की तो 6 महीने की जेल हो सकती है, फाइन भी लग सकता है 1000 का, या फिर दोनों भी हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट 1960। आप कुत्ते को पीट नहीं सकते, आप बिल्ली को मार नहीं सकते। सो दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट। सो ट्रीटिंग एनिमल क्रुएली, क्रुएली मतलब बेदर्दी से किसी जानवर को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, मतलब आपका पालतू जानवर है उसको समझता नहीं, उसको आप मार रहे हो। अभी बीच में वीडियोस भी आए थे कि भी कुत्ते को बिल्डिंग के ऊपर से उल्टा लटका के छोड़ दे रहे हो, दैट इज अ क्रुएलिटी। सो यू विल बी convicted under the prevention of cruelty to the animal act 1960, इसके तहत आपको सजा हो सकती है। so treating animal cruelly on first connection you have to pay fine not less than 10 rupees, may extend up to 50 rupees and 25 to 100 rupees on next connection। ये बहुत ही कम है, लेकिन ये पुराना पुराना है क्योंकि सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ है, आजकल बहुत ज्यादा है फाइन। ठीक है, ये पहला है 10, आप बोलेंगे 10 रुपये मतलब कुछ भी नहीं, मैं 10 रुपये देके किसी भी कुत्ते को मार सकता हूँ, कितना भी पैसा है मेरे पास, वैसा नहीं है। ये पुराना है, ये सिलेबस रिवाइज नहीं किया है, इसलिए ये पुराना है ये कन्विक्शंस। आजकल जो है वो बहुत ज्यादा फाइन है। तो आप किसी बिल्ली को मार नहीं सकते, कुत्ते को हार्म नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए भी प्रोविजंस है, मतलब रूल सिर्फ आदमी के लिए नहीं है, कुत्ते के लिए भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक puka and other to increase the milk of cow, then fine up to 1000 rupees और imprisonment up to 2 years। मतलब ये क्या होता है कि ये जो विलेजेस एरिया होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होता है कि जो जो फार्मर्स होते हैं तो उनके पास गाय रहती है, भैंस रहती है उनके पास, they used to have a lot of cattles like cows, then your buffaloes and all that, like cows, buffaloes, then goat etc. So they used to get a milk from them। ठीक है, गाय से क्या मिलता है, दूध मिलता है, भैंस से क्या मिलता है, दूध मिलता है, बकरी से क्या मिलता है, दूध मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं आपकी बकरी का दूध बढ़ा के दे सकता हूँ, अभी आपकी बकरी कितनी देती है, 1 लीटर, तो मैं एक पूजा करूंगा, एक हवन करूंगा या कुछ जादू टोना करूंगा, आपके बकरी का दूध 1 लीटर से डायरेक्टली 5 लीटर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है और इसमें कोई इन्वॉल्व है, सो परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक फुका और other operations to increase the milk of animals, so that is liable to fine up to 1000 rupees and imprisonment up to 2 years। मतलब अगर ऐसा कोई करता है
और वो कंप्लीट होती है उसकी, तो फिर इसको ये 1,000 रुपये का फाइन है, 2 साल का जेल है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपकी गाय का दूध बढ़ा के दे सकता हूँ, और कोई बोल रहा है कि मैं भैंस का दूध बढ़ा सकता हूँ, तो ये ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द रिमेनिंग पोर्शन। ओके नो, जस्ट वेट। अभी कितना बजा है? ठीक है, मैं एक बार सेव कर लेता हूँ इसको।